for सीखना should be learn. थैंक यू निधि। अब आप अगला सवाल किसी और से पूछिए, विवेक ध्यान से सुनते रहेंगे। Shivang, what is the spelling? Sir, can I spell? Shivang, what is the spelling of learn? Didi, the spelling of learn is Learn. Deepika Didi, what should be the second form of learn? The second form of learn should be learned. Neha, Neha, Sorry, what should be? Deepika. Sorry, Deepika. Come again. Your English. The second form of learn should be learned. Neha, what should be the third form of learn? The third form of learn should be learned. Nishadi, uh, what uh, what should be the spelling of learned? Uh, who's rest? Shivang, what should be the spelling of learned? I am done. Who is rest? Rupal ji, म्यूट योरसेल्फ नेहा, थैंक यू। दोस्तों, एक बार मैं दोहराता हूं विवेक के चलते। विवेक, आप ये ला के बाद जो दो बिंदी देख रहे हैं, दिख रही हो तो आप मुंडी ऐसे हिलाइएगा। दिख रही है? थैंक यू। मैं और थोड़ा सा नजदीक लाता हूं। तो इन दो दो बिंदुओं को हमारे हिंदी या संस्कृत में विसर्ग कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये दो बिंदी जहां लगाते, आप ये समझ जाइएगा कि वहां पे आर को साइलेंट किया जा रहा है, रा रस्सी का दबा दिया जाता है। अंग्रेजी में बहुत सारी जगहों पर आर को साइलेंट किया जाता है, उसे अच्छा माना जाता है। और अगर आप आर को साइलेंट नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो एक उदाहरण देखिएगा कि कैसा लगता है। दो लोग इंग्लिश वाले हैं, दोनों ने एमए किया है, दोनों अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। पहला व्यक्ति किसी ग्रामीण स्थल का है, गांव का है, दूसरा शहर का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, मैड्रास का है और किसी महानगर का है। तो दोनों के अंतर को आप महसूस कीजिएगा। पहला वाला व्यक्ति बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग। आप देखिए कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। दूसरा वाला बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग। अब मैंने अमेरिकन स्टाइल में बोला जरूर विवेक, लेकिन देखो नीचे गूगल ने बिल्कुल सही टाइप किया। यू कैन सी गूगल इज अंडरस्टैंडिंग माय एक्सेंट, he is typing absolutely correct. First person says, what are you doing? Second person says, what are you doing man, what are you doing, I don't understand. Google is taking everything correct. फिर पहला व्यक्ति बोलता है, where are you going बड्डे, where are you going। हम थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए। सेकेंड पर्सन सेज, hey John, where are you going? Hey John, where are you going? Tell me. No.
You can see Google is typing absolutely correct. Means Google can understand my English. Then first person says, Kaiwande, when did you come here? When did you come here? When did you come here? Then second person says, hey, Tina, when did you come here? When did you come here, Tina? It's a pleasant surprise. It's a pleasant surprise. Second spelling is correct. First time I said wrong. My pronunciation was wrong. Google took present. Second time I rectified my pronunciation. Google took pleasant. It's a pleasant surprise. So this is the difference between THET English and Metro English. It's up to you. It depends on you. Whichever you want to speak, you can speak. And one more thing I would like to share with you. मैं स्वयं गांव का हूँ. मेरी पहली से 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा शहपरा बिटोनी नाम के गांव में हुई थी, जहाँ से अभी ऑयल के टैंकर आते हैं भेड़ाघाट से आगे जाके भोपाल रोड पर. तो पहले मैं भी वैसे ही बोलता था, काय कहते जा रहे, क्या कर रहे, इसलिए मैं उसको बोल भी पाता हूँ. But when I started teaching, when I learned English, I improved my pronunciation, and now whenever I talk to anybody, he or she can understand me better, whether I'm using American accent or British accent or Indian accent. They can understand me. But yes, if I use some American accent deliberately, you will not be able to understand because you are new since. No problem, no problem. ये मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा था. आप इनसे पूछिएगा. मैं इतनी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ शुरू में बच्चों के साथ. I do not use American accent English with the students at the beginning. But for example, I'm using American accent or the British accent. Okay, Deepika, you have to speak this completely like this. Let me give you one example. Seekhna, that is learn, Learn, learn. Second form is learned, and third form is learned. Speak like this, Deepika. सीखना, that is learn. Second form is learned. Third form is learn. Shivang, what should be the verb for याद करना? Didi, the verb for याद करना should be learn. Didi, what should be the second form of learn? Shivang, the second form of learn should be learned. Neha, what should be the third form of learn? Neha, your voice is chopping. Learn. Nisha, what should be the third form of learn? The third form of should be learn. Sorry, come again.
the third form of should we learn? Yes. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम पूरा राउंड खेलेंगे। लर्न में अगर हम ईडी लगा दें, बच्चों आप जानते हैं कि अधिकतर क्रियाओं के अंत में ईडी लगने से सेकंड फॉर्म, दूसरा रूप और थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप बनता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी एक सीमित भाषा है, तो ये उनकी मजबूरी है कि वो एक ही शब्द से 2, 3, 4 और कई शब्द बनाते हैं। ये उनका शौक नहीं है, मजबूरी में ऐसा करते हैं। हमारे लिए ये दिक्कत हो जाती है जब हमें नहीं बताया गया होता है तब। लेकिन चूंकि मैं अब आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आंसर लिखा हुआ एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। Guys, I am sorry, power is cut in here, so I am changing my place, but I am asking one question. Deepika, who was learned person? Sir, Vivekanand was a learned person. कौन थे विद्वान व्यक्ति? विवेकानंद विद्वान व्यक्ति थे। कैरी ऑन। शिवांग, who was a learned person? Sorry, Didi, you are using unnecessary article. Okay. Who was learned person? Guru Gobind Singh was learned person. शिवांग, कौन विद्वान व्यक्ति थे? दीदी, गुरु गोविंद विद्वान व्यक्ति थे। दीदी, who was learned person? शिवांग, ऋषि विश्वामित्र was learned person. दीदी, विद्वान व्यक्ति कौन थे? शिवांग, ऋषि विश्वामित्र जी ना विद्वान व्यक्ति थे। निशा, who was learned person? तुलसीदास जी learned person. Come again. Please come again. Tulsidas a learned person. Please come again, Nisha. Tulsidas a learned person. Sorry. Tulsidas ji learned person. Sorry, Nisha. Please take lifeline. दीदी, come again please. Okay, Neha. Who was learned person? Swami Vishwamitra, the learned person. Come Nisha again ji, please. दीदी, come again please. Swami Vishwamitra ji, the learned Sorry. person. Neha, Swami विद्वान Vishwamitra, No, दीदी, mute yourself. Swami दीदी, come again. Vishwamitra, Swami Vishwamitra, the learned person. Sorry, Am I दीदी. right?
Sorry, Neha, come again. Shami Vishwamitra ji, a learned person. Sorry. Sorry. Shami Vishwamitra, the learned. Shami Vishwamitra. क्या होगा? स्वामी विश्वामित्र is Okay, Neha. Who is rest? Ask again, Nisha Didi. Vivek ji. Who? Acha. And Nisha, who was learned person? Nisha, where are you? Are you there? Neha, Nisha, who was learned person? Vidhi Tulsidas ji, the learned person. Vidhi Sorry, Sorry, Nisa. Didi. Sorry, Tulsidas ji. sorry, Nisa. can I make Okay, Neha, Swami please. Vishwamitra was learned person. So there you are, Neha. Thank you. Thank you. नेहा विद्वान व्यक्ति कौन थे? स्वामी विश्वामित्र जी विद्वान व्यक्ति थे. See who was learned person. Neha Tulsidas was learned person. निशा दी विद्वान व्यक्ति कौन थे? तुलसीदास जी विद्वान व्यक्ति थे. Who is rest? New guy Vivek Bhaiya. Vivek ji, who was learned person. Vivekanand was learned person. विवेक जी विद्वान व्यक्ति कौन थे? विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे. आपको जिसका भी नाम याद हो उससे पूछ लीजिए. Shivang, who was the learned person? Acharya Ramchandra was learned person. Yeah, please complete the process. विद्वान भक्त कौन थे? आचार्य रामचंद्र विद्वान व्यक्ति थे. आई एम बैक गाइस. विवेक जी जरा अपने माउथ पीस को नजदीक रख के जवाब दें या प्रश्न करें आगे से. सॉरी. हैव यू रिटन दिस, शिवांग? Yes, sir, I have written this. शुड आई रेज? Yes, sir, you should erase. आगे पूछ लो. Deepika Didi, have you written this? Yes, Sivang, I have written that. Should I erase? Yes, Sivang, you should erase. Nidhi, have you written that? Yes, yes, Deepika, I have written that. Should I erase? Yes, you should raise, please. Uh, Neha, you have written that?
दीदी, Yes, Nidhi. अर्थ का अनर्थ करूंगा। Sorry, Neha, have you written that? Yes, Nidhi. I have written that. Should I raise it? Yes, Nidhi. You should raise. Nishadi, have I written that? सॉरी Sorry. दीदी, Have you written that? Nishadi, have you written that? Yes, Neha. Have you written that? Nishadi, सॉरी Sorry. दीदी, I have written that. Nishadi, should I raise? Yes, Neha. You should raise. दीदी गुड जब मॉर्निंग ये निशा। गुड मॉर्निंग निशा। Sorry. Sorry, sir. Who गुड is rest? मॉर्निंग दीदी, Who is rest? Nisha, Vivek ji is rest. बेटा एक काम कर लेते हैं, एक बार गुड मॉर्निंग प्रयोग ही कर लेते हैं ना, एक एक करके। गुड मॉर्निंग शिवांग। सर आई एम अवेक, शिवांग जागिए। मैं जाग रहा हूँ। दीपिका दीदी गुड मॉर्निंग। I'm awake, Shivang. दीपिका दीदी जागिए। मैं जाग रही हूँ, शिवांग। निधि, गुड मॉर्निंग। I'm awake, Deepika. निधि जागो। मैं जाग रही हूँ, दीपिका। Good morning, Nisha. Didi, I am awake. Okay. जागो मोहन प्यारी निशा। दीदी, मैं जाग तो रही हूँ। निशा जी गुड मॉर्निंग अगेन। I am rest. अच्छा अच्छा। नेहा, गुड मॉर्निंग। I am awake, Nishadi. नेहा जी, जागिए। मैं जाग रही हूँ, निशदी। विवेक विवेक भैया, गुड मॉर्निंग। I am awake. विवेक भैया जागिए आप। तुमने अपने ईयरफोन का वो जो पिन होती है ना, वो शायद अच्छे से लगाई नहीं है, चेक करो। और अगर ये गाने सुनने वाला ईयरफोन बहुत दिन से यूज कर रहे हो तो मैं बता दूं, केवल जानकारी के लिए सभी लोग सुन लें, अगर आपका ईयरफोन आपके मोबाइल से कंपेटेबल नहीं, if your earphone is not compatible with the mobile same company, voice clarity will not be there, you will not get the voice clarity। आप गाने सुनते हैं, इट इज गुड, गाने सुनने के लिए वो अच्छा है, लेकिन गूगल मीट में आपको उसी कंपनी का ईयरफोन यूज करना चाहिए जिस कंपनी का आपका मोबाइल है। ऑनलाइन आप खरीदें, थोड़ा महंगा आएगा, 300-400-500 रुपये का आएगा, लेकिन एक बार आ गया तो आपको लंबे समय तक अगर ये क्लास कंटिन्यू करनी है तो एक बार इतने पैसे आप खर्च कीजिए, नहीं तो आपको कुछ सुनाई देगा नहीं। और अगर आप जबलपुर के हैं तो ऑफलाइन क्लास में आइए, ऑफलाइन की 2 क्लासेस चल रही हैं, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे। जो लोग जबलपुर के हैं और नज़दीक रहते हैं वो ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। ओके, एक बार और बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग विवेक। I am awake, sir. जागो विवेक। मैं जाग रहा हूँ सर। थैंक यू विवेक। नाउ म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। जिसको कहते हैं म्यूट योरसेल्फ और अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, ये सब लिखा भी आता है इसमें।
बहुत सारी इंग्लिश तो ये गूगल मीट खुद ही सिखा देता है। एनीवेज, लगता है ये इंटरेक्टिव इनको मिला नहीं है बेटा, है ना? दीपिका, Yes, अभी sir. अभी मैंने जो बोला वो तुम लोग को नहीं मिला ना बेटा? Sir, your voice is not clear. Please repeat the question. Now, am I clearly audible? Yes, sir. Now you are clearly audible. Anyway नाम का इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया है क्या मैंने आपको? No, sir. No, no. ओके, तो चलिए मैं अभी देखता हूँ। आज का इंटरेक्टिव वही रहेगा। विवेक, इंटरेक्टिव सेंटेंस यानी एक ऐसा वाक्य होता है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में रोज बोलने के काम में आता है। और जो लोग लिखबे के लान मरे जाते हैं, सुन लो पहले, आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस ज्यादा जगह लेगा। बेटा हम जबलपुरिया हैं तो हम इसी भाषा में बात करते हैं ताकि सही व्यक्ति तक सही बात पहुंच जाए। वो मासाब टाइप के हैं नहीं हम। अगर तुम यहाँ क्लास में आके देखोगे तो अभी हम लोवर पहने हुए हैं और क्लास में हम ऐसे ही कोई बहुत टाई वाई और सूट वूट पहन के नहीं आते हैं, एकदम नॉर्मल रहते हैं और इससे जल्दी समझ में आता है बच्चों को, इसलिए हम यही भाषा का प्रयोग करते हैं, मिक्स का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो इंटरेक्टिव सेंटेंस है वो वहां से लेकर यहाँ तक लंबा हो जाएगा और हम पहले ही पूरा लिख देते हैं। आप देख लीजिए कितनी जगह में आएगा, फिर थोड़ा कंजूसी से छोटे छोटे लेटर करके आपको पूरा एक लाइन में लिखना होगा। Deepika, is it totally visible or not? No, sir. Okay. Now, Now it is visible. now, It is okay, sir. अभी सब दिख रहा है proper. देखिए दोस्तों, अगर पूरा नहीं भी दिखता है तो जब हम बोलना शुरू करेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा तो आप लिख सकते हैं, है ना? उसको यहाँ पे पढ़ के आपके उस पर पूरी स्क्रीन पे आएगा, तब भी आप लिख सकते हैं। मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ पूरा की पूरा, वो लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पे। Anyway, anyways, come to the point. Anyway slash anyways, come to the point. आपकी स्क्रीन पे पूरा आ गया है, और नहीं भी आया है तो मैं बाद में टाइप करके भेज दूंगा, व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, एनीवे प्राचीन है। हम पहले राउंड में एनीवे का सभी लोग प्रयोग करेंगे, एक एक सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में हम लोग सब लोग एनीवेज का प्रयोग करेंगे, एक एक सेंटेंस और बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में विवेक, पहले कभी तुमने एनीवे सुना है? माइक चालू करके जवाब दीजिए, हाँ या ना। यस सर। तो आप इसका क्या अर्थ जानते हैं, बता दीजिए हिंदी में। कोई बात नहीं सर। वेरी नाइस। अब आप माइक बंद कर लीजिए। निशा बेटा, तुमने सुना है कभी एनीवे किसी सीरियल में, पिक्चर में? हाँ या ना बताएं।
हाँ या ना बोलें माइक चालू करके। क्या अर्थ निकाला आपने ये भी सुनो। बता दें निशा जी। कोई बात नहीं। थैंक यू। अपना माइक बंद कर लें। अब मैं पूछ लेता हूँ, दीपिका से अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, निधि से भी नहीं पूछ रहा हूँ, निशा से मैंने पूछ लिया है, विवेक से पूछ लिया, शिवांग से मुझे नहीं पूछना है, और नम्रता क्योंकि बाहर है इसलिए उनसे भी मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर वो अंदर आ गई हो तो बताएं, मैं उनसे पूछ लूंगा। She was in the market, but she was listening. She is not responding, means she is out. दीपिका जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। एनीवे दैट इज कोई बात नहीं। हाँ, यही अर्थ अधिकतर बच्चे जानते हैं। अब नेहा बताएगी कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। एनीवे सर, इसका कोई बात नहीं। अच्छा, नेहा को भी नहीं मिला है। अब निधि बताएगी इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है बेटा। Anyways, it is खैर। हाँ, और दूसरा वाला अर्थ बताएगा शिवांग। बहरहाल। खैर उर्दू का शब्द है, बहरहाल भी उर्दू का शब्द है, दोनों कठिन शब्द हैं उर्दू के। और शिवांग बेटा, अपन पहला राउंड सेम टू सेम खेल रहे हैं। आपको पूरा सेंटेंस बोलना है और सुन लीजिएगा। शिवांग अगर ये वाले हिंदी का प्रयोग करता है तो उसके बाद वाला व्यक्ति प्लीज ये वाले हिंदी का प्रयोग कर ले, फिर उसके बाद वाला ये कर ले, फिर ये कर ले, ऐसा एक एक करके कीजिएगा ताकि दोनों उर्दू के शब्द आपके मुंह से निकल जाएं। और पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ। कम टू द पॉइंट का हिंदी तो मालूम होगा नेहा बेटा, दीपिका जिसको भी मालूम है बोल दे। सीधे मुद्दे पर आओ। मुद्दे की बात करो। सर इसको ऐसा भी बोलते हैं, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तुमने, इसलिए मैंने वहां दो अलग अलग लिखे हैं। और हमें खुशी होती है कि तुम कुछ चीजों से परिचित हो, और जिस तरह से तुम परिचित हो ये कठिन तरीका नहीं है बेटा। हम कई बार आश्चर्य करते हैं नेहा लोगों के लिए, निशा के लिए, रोशनी के लिए, कि ये लोग सीरियल वगैरह देखती भी हैं कि नहीं देखती हैं। मूवीज सीरियल से बहुत कुछ सीखने मिलता है यार, इनको देखना चाहिए अगर नहीं देखती हैं तो। निधि, सबसे पहले तुम फ्री हो बेटा, पूरा एज इट इज बोल दो, उसके बाद शिवांग का नाम पुकार दो क्योंकि वो किसी से बात कर रहा है। ओके सर। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। खैर मुद्दे की बात पर आओ। दीपिका। एनीवेज कम टू द पॉइंट, बहरहाल मुद्दे की बात पर आओ। शिवांग। एनीवे कम टू द पॉइंट, खैर मुद्दे की बात पर आओ। नेहा दीदी। एनीवे कम टू द पॉइंट, बहरहाल मुद्दे की बात पर आओ। निशा जी। Anyways, come to the point. खैर मुद्दे की बात पर आओ। निधि। निधि। Sorry, I'm done. Who is rest? Who is rest?
इस बात पे भी मैं ध्यान देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीपिका तुम तो समझ गई होगी, मैं किसी को भी सोते हुए नहीं चाहता अपने क्लास में, अपने बैच में। और जागने और सोने का मतलब यहाँ आंख बंद करने से बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि किस किसने बोल दिया है, वो ध्यान नहीं देते हैं और सबके पिक्चर के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, उनका ध्यान नहीं रहता। तो ये ध्यान देना चाहिए। हमें 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, 7 मुझे मिला के, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने मुझे डबल टैप किया है तो फिर से सिंगल टैप कर लो, तो आपको पूरे 8 लोग फिर से दिखाई देने लगेंगे। इसको अनपिन करना भी कहते हैं। यू कैन अनपिन मी, यू कैन पिन मी। विवेक चलिए आप बोलिए। नेहा निशा जी सो रही थी, उनको पता ही नहीं है कि किसको बोलना है किसका नहीं। थैंक यू निशा। एनीवे कम टू द पॉइंट। खैर मुद्दे की बात पर आओ। थैंक यू विवेक, तुम बहुत जल्दी सीख गए कि बोलने के ठीक बाद म्यूट करना होता है, तुम सीख गए। थैंक यू, वेरी गुड। अब हम यहाँ दूसरे वाले को मिटा दे रहे हैं। 2 राउंड खेलेंगे। पहले सबको एनीवे पहला वाला जो है उसका प्रयोग करना है और अपने मन से एक वाक्य लगाना है आपको यहाँ। एनीवे के बाद आप घबराइए नहीं, शिवांग से शुरुआत होगी, फिर दीपिका का नंबर आएगा। आपको एनीवे का प्रयोग करना है और दूसरे राउंड में हम सब एनीवेज करेंगे। दोनों का अर्थ एक ही है। शिवांग। यार, anyway, come to the point because your time is up. यार, खैर सीधे मुद्दे की बात पर आओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। शिवांग मेरी बात को समझ नहीं पाए। दीपिका तुमने समझा बेटा? सॉरी सर। निधि तुमने समझा? यस सर। निधि। यस निधि। anyways come to the point. अच्छा निधि जाइए निधि। थैंक यू। दीपिका आप मेरी बात समझिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। निशा जी आप मेरी बात समझिए। थैंक यू निशा जी। Sir, anyways, nothing. वेरी गुड, निशा ने काफी अच्छे से समझा। थैंक यू निशा बेटा, हम आपको बाद में फिर से पुकारेंगे, म्यूट कर लीजिए। नेहा जी आप समझी मेरी बात? Anyways, you can go. खैर आप जा सकती हैं। आप भी नहीं समझी पूरी, आपको भी धन्यवाद। नम्रता आप आ गई हैं, नहीं आई हैं, कोई बात नहीं। चलिए मैं फिर से दोहराता हूँ अपनी बात को। पहले एनीवे का यूज करना है सबको, एक राउंड पूरा होगा, उसमें बाद में एक वाक्य अपने मन से लगाना है। मैं एक रेडीमेड सेंटेंस बोलता हूँ, आप रेडीमेड मत बोलिएगा। एनीवे शिवांग, नो प्रॉब्लम। बहरहाल शिवांग, कोई बात नहीं। निधि ने सहमति में सिर हिलाया है, तो मैं निधि को कॉल करूंगा। Anyways Deepika, break dance. बहरहाल दीपिका, श्री गणेश करें। ये कॉपी वर्क शुरू हो गया, इसका मुझे डर था, मैंने बोला भी था। चलिए मैं एक नया सेंटेंस बना देता हूँ। एनीवे गुड्डू लेट इट बी। खैर गुड्डू जान दो। एनीवे गुड्डू लेट इट बी। खैर गुड्डू रहन दो।
सर मैं बेटा तुमने तो उठा के 2 इंटरेक्टिव लगा दी, जिसका मुझे डर था। इधर से निकालना होगा आपको सेंटेंस। कॉपी वर्क नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए बेटा। एनीवेज शी विल नॉट अंडरस्टैंड। खैर वो नहीं समझेगी। गुड। I'm यस शिवान। anyway, take my copy. खैर बहरहाल मेरी कॉपी ले लो। I so. Anyway, do your work, शिवांग। खैर अपना काम करो शिवांग। Who is ready? I'm ready. Anyways, it's my turn. खैर ये मेरी बारी है। Who is ready? I am ready. Anyway, anyways, do you study? खैर कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई करो। Anyways, दीपिका, आपने बिल्कुल शिष्टतापूर्वक अनुमति मांगी है, तो मैं आपको पहले अनुमति दूंगा। बीच में उचकने वालों को, एक्चुअली नेहा की सीधी गलती नहीं है इसमें, निशा की है। वो अपना सेंटेंस बना के ऐसे गायब हो जाती है, ना ये पूछती है हु इज रेडी, ना कुछ, और वो म्यूट करके खिड़की भी बंद कर लेती, पता नहीं क्या देखते। हम लोग दर्शन में खड़े रहते हैं। दीपिका। Anyway, don't intervene in his matter. खैर उसके मामले पर दखल मत दीजिए। प्लीज Who is कम ready? अगेन। Okay, sir. Anyway, don't intervene in his matter. वो बोल सकते हैं सर वहाँ पे। दीपिका, बेटा पिछले कुछ दिन से तुम्हारा नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। जिस दिन हमने बोला था ना लैगिंग हो रही, उस दिन के बाद से ही ऐसा चल रहा है। तुम जरा अपने मोबाइल में वो जो बूस्टअप का एक चिन्ह होता है ना, हो सकता है तुम्हारे मोबाइल में पीछे 2-3 ऐप खुले हुए हो, चल रहे हो, तो वो बैटरी भी बहुत डाउनलोड हो गए सर। कम अगेन। गेम्स डाउनलोड हो गया होंगे सर। गेम्स हाँ बच्चे डाउनलोड कर दिए होंगे शायद, इसलिए हो सकता है। जी हाँ बेटा, बहुत ज्यादा भर हाँ। जाता है मोबाइल, तब भी ऐसा होता है। यू आर राइट। तो एक बार साफ सफाई, जैसे आप रिपीट लोग घर करें। की साफ सफाई अच्छे से करते हो, मोबाइल की भी करें, वो भी जरूरी है। नहीं तो वो हैंग टाइप का, तुम्हारा मोबाइल हैंग हो रहा है। ओके मैं भी नेक्स्ट। I'm ready, sir. ओके शिवान। Anyway, arrest him because he is drug mafia. खैर उसे गिरफ्तार करो क्योंकि वो ड्रग माफिया है। वेरी नाइस, गुड। बेटा पूछ लो हुई से, नहीं तो नेहा बीच में बोल Now, देगी। who is ready? I'm ready. Anyways, don't interrupt. बहरहाल उनके काम में हस्तक्षेप मत करो। अब Who is पहला, ready? थैंक यू फॉर आस्किंग हु इज रेडी। Anyway, I will try my best. कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। वाह यार, तुम्हारा स्वागत है इस क्लास की प्रोसेस में भी स्वागत है। वेरी नाइस। पहले दिन तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आमतौर पर पहले दिन जो लोग आते हैं वो एकदम कंडा से रहते हैं, जबलपुर की भाषा में मरे डरे टाइप के रहते हैं, लेकिन तुमने पहले दिन आके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मोगेम्बो खुश हुआ।
अब हम दूसरा राउंड खेलते हैं जिसमें एनीवेज बोलेंगे। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली होगी तो कुछ महिलाएं सोच रही होंगी, दैया रे दैया, मैंने तो पिछली ही बार एनीवेज बोल दिया था, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। आई रे। तो अब आप आई रे करते रहिए। हम दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं एनीवेज से, जिसमें एस लगता है। सभी गणमान्य नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। सर, anyways, come what may, I will stand by you. खैर, जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। Who वेरी is ready? नाइस। Who is ready? आई एम रेडी। बेटा एनीवेज निधि, दीपिका ने एक बहुत खूबसूरत इंटरेक्टिव यूज किया जो हमने तुम लोग को लिखवाया नहीं है, लेकिन अब हम बताएंगे नहीं। वो यहाँ लिखा हुआ आया था, किसी ने कम अगेन नहीं बोला, हमें का करने आया। बहुत Didi, come खूबसूरत। again, please. दीपिका प्लीज 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 कम अगेन। Anyways, come what may, I will stand by you. मैं एक बार हिंदी बोलता हूँ, पूरा इंग्लिश भी बोल देता हूँ, रिपीट लिखा हुआ आएगा, देखिएगा, बट आफ्टर 15 seconds. Anyways, come what may, I will stand by you. बहरहाल कुछ भी हो जाए, मैं हूं ना। मैंने भाव बदल दिया है दीपिका, वही भाव है। सर एग्जैक्टली वही होगा, मुझे भी याद नहीं था एक्चुअली। ये रियल इंग्लिश है दीपिका, और तुम ये इतने शब्द जानती हो, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये कॉमन सेंस से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं तो चीजें दिखती हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी लोग म्यूट करके ध्यान से सुनिए। अगर आपके दिमाग में ये भर दिया है आपके समाज ने या आपके परिवार ने कि जो कुछ सीखना है वो हमें किताब में मुंडी डाल के सीखना है, मुंडी घुसेड़ के सीखना है, तो ये गलत है बच्चों। सीखना हमेशा किताब में घुस के, पढ़ के, रट के, लिख के, नंबर ला के सीखना is not the real education. This is not real education बच्चों। Real education means you are learning from your surroundings. आप अपने आसपास के माहौल से सीख रहे हैं। This is the real learning. Do you know Kabir Das ji never went to school? Tulsidas ji, Kabir Das ji, Kabir Das ji special never went to school. वो कभी स्कूल नहीं गए थे, इतिहास रच दिया उनके जहन, उनके वो लिख। अब आप सोच रहे हो कि उनकी जो चीजें लिखी हुई हमें मिलती हैं, तुलसीदास कबीरदास जी की, और एक और है हमें नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अंगूठा छाप। तो फिर जो उनकी चीजें हम पढ़ते हैं और उस पर PhD करते हैं, वो कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे मन में भी बहुत समय तक ये जिज्ञासा थी, फिर मैंने कहीं व्हाट्सएप में देखा या पढ़ा या सुना कि वो घूमते रहते थे और कुछ कुछ बोलते रहते थे, बकते रहते थे। कुछ लोग उनको पागल भी समझते थे, लेकिन कुछ लोग जो उनकी विद्वत्ता को समझ चुके थे वो उनके पीछे पीछे घूमते थे, और उनमें से जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो उस चीजों को नोट कर लेते थे। तो उनके इतने सारे साहित्य में से इतना सा मौजूद है, क्योंकि हर चीज नोट नहीं हो पाई, राइट डाउन नहीं हो पाई बेटा, इसलिए हमें कम मिला है। नहीं तो उन्होंने तो बहुत चीजें बोली, वो घूमते रहते थे, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते थे, लोग लिख लेते थे। वो कभी स्कूल का मुंह उन्होंने नहीं देखा, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, वो काखा गाघा नहीं जानते थे,
वो तो गॉड गिफ्टेड थे, उनके मुंह से निकलता जाता था और लोग लिखते जाते थे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, किताबों में मुंडी घुसेड़ने से ज्ञान आता है, तो अपनी मानसिकता को प्लीज बदलिए। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। दिस इज अ सिंगल वर्ड। अपनी मानसिकता को बदलिए। इसीलिए वो कहा गया है ना, वो बिल्कुल सही कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोवा। मोवा यानी बेवकूफ। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली लेकिन रहे बेवकूफ के बेवकूफ। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सब पंडित हो। चलिए इस विषय पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। समय anyways, I will teach you संस्कृत। खैर, मैं तुम्हें संस्कृत सिखाऊंगी। Who is ready? I'm ready. Okay, Neha Didi, after you. Anyways, soft fire makes a sweet malt. खैर, धीरज का फल मीठा होता है। Who is ready? बेटा I am ready. नेहा, जब तक तुम ये कॉपी वर्क करोगी ना, ये राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। पिछले 27 साल से यही तो हम करते आ रहे हैं। रटा रटाया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। कभी थोड़ा सा कंप्यूटर चलाया होगा ना बेटा, जीवन में इतना सा चलाया हो, उसमें कॉपी करके पेस्ट कर देते। एक बटन से कॉपी करते हैं, दूसरे से पेस्ट हो जाता है। जो लोग जानकार हैं वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो बेटा ये यहाँ से बनाओ सेंटेंस, जैसे विवेक ने बनाया, वो भी रेडीमेड है लेकिन वो हमने लिखवाया नहीं। विवेक ने बोला एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा सेंटेंस था, लेकिन मैंने तो उसको नहीं लिखवाया। पहला दिन है आज उसका। अच्छा था। नाउ हु इज रेडी? I'm ready. निशा ने बहुत देर बाद ललकार लगाई है। Anyways, एम एंड आई। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना सर। एम एंड आई। एनीवेज, एम एंड आई। पता नहीं, हमें तो जो नहीं मालूम, कसम से, विद्या कसम। कैन चलो तुम Can बोल लो। I? चलो आई ठीक है। आई ओके। मीना यस, यू लेडीज फर्स्ट। anyway sir, I like the way you talk. Who is ready? अरे Ashli, कंप्लीट please तो complete the process. सॉरी। खैर सर, आप जैसे बात करते हैं, आपके बात करने का तरीका मुझे पसंद है। Who is ready? I am ready. I am ready. Anyways, change your lifestyle. खैर, अपनी लाइफस्टाइल बदलो। Now, who's ready? I'm ready. Anyway, I am coming. कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। बेटा विवेक पूछो, हु इज रेडी? Who is ready? I am ready. Anyways, I will
I will read. I will get ready. Sir, am I right? Dick, can you please come again? Anyways, I am. I can. I can play sometimes. Anyways, मैं sometimes खेल सकती हूँ. खैर मैं sometimes खेल सकती हूँ. Good morning, Didi. Who is ready? I am ready. Okay, Namrita Didi. Anyway, the things will be good after some time. खैर चीजें कुछ समय बाद अच्छी हो जाएंगी. Who is ready now? I am ready. Anyways, save all the animals. खैर सभी जानवरों को बचाओ. Now, who's ready? I am ready. Anyways, good person. खैर वो अच्छा आदमी है. बेटा I'm निशा, ready. तुम्हारे वाक्य में वो नहीं है और है भी नहीं है. ना वो है ना है इंग्लिश में. हिंदी में तो सब आ गया. वो अच्छा आदमी है. इंग्लिश में कहीं ये सारे शब्द आए नहीं बेटा. कोशिश करो एक बार कि वो आ जाए और है आ जाए. Anyways, be good person. है तो नहीं आया अभी तक. Anyways, he good person. ही गुड पर्सन का मतलब होता है वह अच्छा आदमी. ऐसा बोल दो, ही गुड पर्सन है. और क्या करोगे आप? Anyways, he good person. खैर वो अच्छा आदमी है. अरे है तो लगाओ मैया. वह ही गुड पर्सन है हिंदी का लगा दो. नहीं तो इंग्लिश वाले लगा दो. अच्छा निशा, सर फ्री तो होगा. कुछ काम तो नहीं कर रही ना बेटा? फ्री हो ना? सर एक्चुअली मैं बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे. बच्चों को बोलो इधर आओ, दिखाओ जरा उनको. मोबाइल में सामने ले आओ. आओ बेटा. ओके सर, बाय. बच्चों, हेलो बच्चों. कितने बच्चे हैं? बच्चों, हेलो सर. हेलो बच्चों. तुम लोग दिख नहीं रहे हेलो बेटा. सर. हेलो, दिख तो नहीं रहे बे. देखो तो. हाय. अच्छा बच्चों, तुम्हारी मम्मा बोल रही कि तुम लोग थोड़ा परेशान कर रहे हो. सॉरी सर. हैं? नहीं नहीं, सॉरी नहीं. हम तो बोल रहे ज्यादा परेशान करो. और परेशान करो जरा. थोड़ा नहीं करना चाहिए. देखो कम नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी चीज. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. ज्यादा परेशान करो. खूब परेशान करो. एक बार अच्छे से परेशान कर लो. और जब वो परेशान हो जाएंगी ना मम्मा, तो फिर वो क्लास अटेंड कर लेंगे. ठीक है? अच्छा कैसे परेशान करते हो जरा बताओ जरा. डांस करते हो क्या? कि बीच बीच में कूदते हो? क्या करते हो? तुम लोग तो मम्मा के पीछे खड़े हो जाया करो, डांस किया करो. हमें बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है? मोबाइल के पीछे से मत परेशान करो, सामने आके किया करो. हमें बड़ा अच्छा लगता है बच्चों का परेशान करना. मालूम?
और अगर तुम लोग यहाँ होते तो हम टॉफी जरूर देते तुम लोग को। पूछ लो ये बड़े दीदी भैया लोगों से। तो चलिए इस पारिवारिक विवाद के बाद आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है मिस हु इज रेडी? ओके, कम टू मी। खैर मेरे पास आओ। हु इज रेडी? निशा के Sir, I am ready. बच्चों दीपिका मौसी बुला रहे हैं। उन्हीं से याद आया सर। Anyway, don't repeat this mistake. खैर अब ये गलती दोबारा मत करना। समझे? Didi, Who is ready? I'm ready. Anyways, loaded all the things. खैर सब चढ़ा दो बिल्कुल। वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग किया है शिवांग आपने? सेकेंड फॉर्म। कौन से चैप्टर में आ गया सेकंड फॉर्म? पास्ट। तो हिंदी में तो बोल रहे चढ़ा दो, इसमें पास्ट कहाँ है भाई? ऑर्डर रिक्वेस्ट है जो। ऑर्डर रिक्वेस्ट। हाँ, कैन आई मेक सर? यस दीपिका, यू कैन मेक। Anyways, we should go now. Yes, correct. You have spoken out of my mouth. Anyways, we should conclude the class. Yes, बेटा शिवांग अपन लोग तो ऐसे ही हैं, लेकिन इन दीदी लोगों को बहुत काम करना पड़ता है बेटा। अब जाके सब खाना वाना बनाएंगी, पता है तो तुम जानते होगे, है ना? तो बहुत काम रहता है महिलाओं को। कैसे वो 1-1.5 घंटा निकाल लेती है, बड़ी बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।